Hi. So we're going to talk about body of a paper or body of a work, right? Because it is very, very important. I kept on saying that your title should represent the body of your work. Now is the turn to ask the right questions. What do we actually mean by body? Right? तो body के कुछ significant components होते हैं which can never be touched. So first is obviously the title. Along with title, you always have to provide one abstract, which would be 250 to 500 words. Right now, this is the abstracted version of your entire work. Abstract keyword, since you are BTech computer science students, you would understand the word abstraction and the word abstract. So it basically represents the essence of your work in the very beginning. I will make a separate video on how to write abstract so that you know what it means. Along with abstract, you also have to provide a list of keywords. Ideally, 5 से 6 keywords होते हैं. Write them in such a manner that they resonate with the body of your work. For example, title और keyword, ये दोनों आपस में मैच होने चाहिए और ये keyword वही होने चाहिए जो abstract में यूज़ किए जाते हैं. So if you maintain this cycle, it will really help you in getting your work indexed and having more references or maybe गेटिंग इट ऑन द टॉप. अदरवाइज काम इतना हमारा करके पीछे पड़ा रहता है, कोई पढ़ ही नहीं पाता उसको, है ना. सो यू कैन यूज़ दीज कीवर्ड्स. मेक श्योर कि जो कीवर्ड यहाँ यूज़ किए हैं वो एब्स्ट्रैक्ट में होने चाहिए और 1-2 टाइटल में भी होने चाहिए. Moving on, once you have your title, once you have your abstract, then comes your introduction, which is the most significant part because this is where you introduce your work. तो आप broad से small की तरफ जाते हो, ठीक है. So introduction में first paragraph would be very very broad. Maybe you talk about the history of the entire. अब तुम टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री की बात करनी शुरू कर दो, तुम CS की हिस्ट्री की शुरू कर दो. It has to be very broad and with every passing line it should become specific 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 till the point. इस पॉइंट पे आ जाएंगे हम स्पेसिफिक बात करते करते और इस पॉइंट के ऊपर वी आर गोइंग टू टेल व्हाट इज इट दैट वी आर गोइंग टू डू. नाउ इंट्रोडक्शन के अंदर देयर इज़ वन सेक्शन ऑलवेज दैट इज़ अबाउट कॉन्ट्रीब्यूशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर पेपर में. एंड कॉन्ट्रीब्यूशन बेसिकली टेल्स व्हाट इज़ इट दैट यू आर गोइंग टू अचीव इन दिस पेपर. इस पेपर में तुम क्या अचीव करना चाहोगे. तो यूजुअली वी राइट 2-3 कॉन्ट्रीब्यूशंस एंड वी गिव आंसर्स टू दोज. हम कहते हैं, हम पहले क्लेम करते हैं कि इन दिस वर्क वी आर गोइंग टू डू दैट. राइट, वी प्रॉमिस समथिंग थ्रू द टाइटल ऑफ आवर वर्क. ऑल्सो वी प्रॉमिस्ड समथिंग कि हम काम कर रहे हैं. हाँ, क्या काम कर रहे हैं जी, इस एरिया में कर रहे हैं. इस एरिया में क्या कर रहे हो, ये कर रहे हैं. So specifically we tell in title and then we have to justify it. So in contribution we particularly make those promises and claims that this is what we are going to do and then we deliver on those claims. So it should never be like, कई बार क्या होता है, नाम बड़े और दर्शन छोटे हो जाते हैं. नाम इतने बड़े बड़े लिख देते हैं हम लोग और अंदर बॉडी ऑफ द वर्क में कुछ होता ही नहीं है. सो विच साउंड्स वेरी बैड. इवन यू विल फील बैड इफ आई सेल यू समथिंग और मैं बहुत बड़ा बड़ा क्लेम करके और अंदर कुछ ना निकले तो तुम्हें बुरा लगेगा, राइट. So always claim as much as you're going to deliver, and contribution is one of the significant components of your introduction because it is going to tell the reader that what is it that you can find in this particular body of work. Now after introduction you have related work or literature review. Related work or literature review. Now this represents basically what is the other work in the area that is being done. For example, if you're picking any particular area, ऐसा तो होगा नहीं कि आप पहले हो और अगर आप पहले होगे तो आपको पता ही नहीं होगा मुझे क्या काम करना है ना. So always what happens, especially in CS, we already have enough work that is available. ऑलरेडी हमारे पास एग्जिस्टिंग अच्छा खासा काम होता है जिसके अंदर से हम ये फिगर आउट करते हैं क्या करना है और क्या नहीं करना है. तो रिलेटेड वर्क उस काम को बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल आपने कोई एरिया पिक करा, लेट्स मेक इट ABC. सो यू नॉट द फर्स्ट पर्सन हु इज़ वर्किंग ऑन ABC. चांसेज आर कि 2003 में ABC पे काम शुरू हो गया था और 2003 से लेके 2005 तक में भी स्लो चल रहा था. 2005 से लेके 2008 तक वो बहुत बूम कर गया. फिर 2014 भी नहीं, 2016 तक वो ठंडा पड़ गया और 2018 में फिर काम शुरू हो गया जिसकी वजह से 2022 में हमने उसको दोबारा एनालाइज करना शुरू किया. नाउ दिस विल रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर ट्रैक. ये एक ट्रेजेक्ट्री होगी कि कब हुआ कब नहीं हुआ, है ना. एंड दैट मीन्स यू वुड बी एबल टू मेक सच काइंड ऑफ कॉमेंट्स ओनली व्हेन यू रीड सच काइंड ऑफ वर्क्स, जब तुम पढ़ लोगे. सो रिलेटेड वर्क बेसिकली रिप्रेजेंट्स दैट. इट वुड बी अ शॉर्ट समरी, 2 पेज की समरी होगी या 4-5 पैराग्राफ की समरी होगी विच इज़ बेसिकली गोइंग टू टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर एरिया जिस पे आप क्लेम कर रहे हो कि इस एरिया पे मैं काम करके दे रहा हूँ या दे रही हूँ, है ना. तो उसमें आप रिलेटेड वर्क को हमेशा साइट करते हो कि दीज आर द एग्जिस्टिंग वर्क्स दैट हैव हैपेंड
आप उसमें ये बताते हो कि किसने किस किस एरिया में काम करा। जब आपको उन एरिया के बारे में पता चल जाता है तभी आप ये बोल पाते हो कि अच्छा ये वाले एरिया रह गए थे, इन पे काम नहीं हुआ, इसलिए मैं ये एरिया उठा के काम कर रहा हूँ, राइट। सो दैट गोज इन रिलेटेड वर्क. There is another thing, there is literature review is also one of the most significant components. इन दोनों में से एक चीज़ डाल सकते हो. रिलेटेड वर्क में हम सीधा बोल देते हैं कि हम सिर्फ उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं जो कि हमारे वर्क के लिए रेलेवेंट है, विच आर रेलेवेंट टू आर वर्क, रेलेवेंट टू आर वर्क. रेस्ट वी इग्नोर. ऑन दी अदर हैंड लिटरेचर रिव्यू में हम ये बोलते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल ये जो मैंने एग्जाम्पल लिया था 2003 से, लिटरेचर रिव्यू में हम ये बोलते हैं 2003 से लेके मैं अगर 2022 में स्टडी कर रही हूँ तो इसके बीच में अगर 2008 पेपर आए हैं ना, 20,008 पेपर आए हैं, तो मैं ये सारे पेपर गो थ्रू कर रही हूँ, लिटरेचर को रिव्यू कर रही हूँ. द एंटायर लिटरेचर इज बीइंग रिव्यूड एंड आई होप यू अंडरस्टैंड द वर्ड लिटरेचर. लिटरेचर अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है ना. सो लिटरेचर रिव्यू जहाँ टर्म यूज़ करो तो ये बात सोच लेना दैट इट हैज़ टू बी वेरी वेरी एग्जॉस्टिव, अदरवाइज देर इज़ नो पॉइंट. रिलेटेड वर्क तुम जहाँ यूज़ करोगे वहाँ ये समझ जाना कि तुम्हें सिर्फ उन्हीं के बारे में बात करनी है जो चीज़ें तुम्हारे काम से रिलेटेड है. उसके आगे पीछे का यू कैन सिंपली से दैट इट फॉल्स सेफली आउट ऑफ द स्कोप ऑफ आवर वर्क. द स्कोप ऑफ आवर वर्क ये लिखा जा सकता है बहुत आराम से, ठीक है. नाउ आफ्टर रिलेटेड वर्क और लिटरेचर रिव्यू के बाद ना हमें ये पता चल जाता है कि एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ अफेयर्स कैसे हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई आस्क यू टू वर्क ऑन द बिल्डिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर, फॉर एग्जाम्पल CSIT में तुम्हें काम करने को बोलूँ कि इस बिल्डिंग को रिपेयर कर दो, तो जब तक तुमने बिल्डिंग देखी ही नहीं होगी तो तुम कैसे रिपेयर करोगे. तुम पहले देखोगे, ऑब्जर्व करोगे, समझोगे कि अच्छा फर्स्ट फ्लोर पे काम की ज़रूरत है, सेकंड पे नहीं है, थर्ड पे ज़रूरत है. once you see it, once you go through it, cupboard by cupboard, floor by floor, room by room, only then you would be able to make a commitment, right, कि यहाँ पे इसकी ज़रूरत है, यहाँ पे इसकी ज़रूरत है. Same goes for literature review and related work. Once you go through a body of work, then only you put yourself in a position to even work. उससे पहले तो अगर आप ये sections miss कर देते हो ना तो it's not good. The reviewer is going to say कि अच्छा मतलब तुम्हारे लिए बाकियों का काम सिग्निफिकेंट है ही नहीं. तुम्हें पता भी कैसे चलेगा कि कितना काम हो गया कितना नहीं हो गया, है ना. बहुत सारी चीज़ों में क्या होता है, द ग्राफ गोज ऑन लाइक दिस. सो देयर आर फ्यू थिंग्स जिनके अंदर काम बहुत ज़्यादा हो रखा है एंड देयर आर फ्यू थिंग्स जिनके अंदर काम बहुत कम हो रखा है. तो ये कौन सा एरिया और ये कौन सा एरिया, इस बात को जानने के लिए यू विल हैव टू रीड अ लॉट. That means you will have to read a lot of titles, a lot of abstracts, a lot of conclusions. I will also tell how to read a paper. So once you read exhaustively, then you tell कि अच्छा यहाँ ज़रूरत है इसलिए मैंने यहाँ काम किया, तभी आप अपने काम को डिफेंड कर पाते हो. अदरवाइज पीपल आर गोइंग टू आस्क, रिव्यूअर्स आर गोइंग टू आस्क कि क्यों कर रहे हो, व्हाई आर यू डूइंग दिस, दिस इज वेस्टेज ऑफ एफर्ट, दिस वर्क इज ऑलरेडी बीइंग डन बाय समवन, राइट. सो यू थिंक अबाउट दैट इन दैट मैनर. वंस यू डू रिलेटेड वर्क इन लिटरेचर रिव्यू, then the next section would be methodology. Now methodology basically tells कि आपने क्या तरीका फॉलो किया in order to do this piece of research. That is what it tells. कि did you go through a lot of papers, if you went through a lot of papers, what was the process of curation for it, कैसे choose किया, कौन से databases choose करे. That also I will tell in slowly subsequent videos में. So methodology basically tells the how of your work. How did you do it, how did you set the parameters, how did you make sure that things were good. All of those things will come in methodology. Methodology के बाद आपकी ना मेन बॉडी आती है. इस बॉडी के अंदर बहुत सारे सेक्शंस हो सकते हैं एंड दीज सेक्शंस विल ऑलवेज बी यूनिक टू योर टाइटल, यूनिक टू योर टाइटल. तो किसी के में कुछ होगा, किसी के में इम्प्लीमेंटेशन होगा, किसी के में कंपैरिजन होगा, किसी के में टेस्ट केस होगा, टेस्ट केस नहीं केस स्टडी होगी, किसी के में प्रॉपर स्टडी होगी. ऑल ऑफ दीज थिंग्स. नाउ दीज हेडिंग्स आर वेरी वेरी इंडिविजुअल एंड दे कीप ऑन वेरिंग डिपेंडिंग अपॉन दी टाइप ऑफ वर्क एट हैंड. तो इस चीज़ के लिए इट इज़ बेटर दैट यू मेक योर ओन सेक्शंस फर्स्ट, एंड देन यू गेट इट रिव्यूड बाय मी. यू विल कम टू मी, आई विल रिव्यू, आई विल टेल यू व्हाट यू कैन ऐड और व्हाट यू कैन रिमूव. नाउ आफ्टर दिस बॉडी, अंत की तरफ देर आर फ्यू सेक्शंस. एक होता है ओपन रिसर्च डायरेक्शंस और एक होता है फ्यूचर वर्क. मोर और लेस दोनों सेम ही चीज़ होती हैं, मोर और लेस, बट स्टिल देयर इज़ अ वेरी यूनिक डिफरेंस. इसी में अपॉर्चुनिटी भी लिख सकते हो. फ्यूचर वर्क ये कहता है कि मैंने तो इतना काम कर दिया, इसके आगे ना ये काम करने का स्कोप है, राइट. एंड दिस इज़ द पॉइंट वेर यू विल ऑल्सो गो टू हंट फॉर आइडियाज़. इफ़ यू फील लाइक यू डोंट हैव आइडियाज़, you look for other people, they've already provided, right. And future work basically represents that section of the work that can be worked on in future.
एंड ओपन रिसर्च डायरेक्शन वो डायरेक्शन बताती हैं कि इन डायरेक्शन में काम हो सकता है. सो दिस वुड बी मोर लाइक पॉइंट वाइज एंड एरिया वाइज. ये एरिया दे देगा मोर और लेस कि इस एरिया में यू कैन वर्क. फ्यूचर वर्क मोर और लेस आइसोलेटेड या यूनिक होता है, यूनिक टू वर्क, राइट. सो इट विल बेसिकली से कि जो मैंने काम करा है उसको आगे बढ़ाने के लिए कैसे बढ़ाया जा सकता है, या फिर इन जेनरिक भी बढ़ाना तो कैसे बढ़ाया जा सकता है, राइट. सो देर आर हाई चांसेस दैट इट इज़ यूनिक टू योर वर्क, बट इट मे नॉट बी यूनिक. मैंडेटरी नहीं होता. सिमिलरली ओपन रिसर्च चैलेंजेस के अंदर ओपन रिसर्च डायरेक्शन या चैलेंजेस दोनों एक ही बात है मोर और लेस. इसके अंदर हम काफ़ी सारे पॉइंट्स और एरियाज देते हैं विच द पर्सन कैन चूज़ फ्रॉम. आइडियली एक पॉइंट लिखा जाता है, फिर उस पॉइंट की एक्सप्लेनेशन शुरू होती है और फिर बहुत सारे रेफरेंसेस साइट करे जाते हैं कि अच्छा यहाँ से ये ले सकते हो, यहाँ से ये ले सकते हो, इन ऑर्डर टू मेक दैट थिंग कंप्लीट. Now once you do the future work or open research directions, then you may go into discussion. You may feel like कि मैंने इतना पढ़ लिया, I've read enough and now I want to discuss few things. So you can go in the discussion section and present your view. Present your view कि मुझे ऐसा ऐसा लगता है, और ये क्रॉस वेरीफाई होता है कि सही है व्यू कि नहीं है. डिस्कशन के बाद दी लास्ट सेक्शन वुड ऑलवेज बी कंक्लूजन विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट. नाउ एब्स्ट्रैक्ट में क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट में ना हम ऊपर से शुरू करते हैं लिखना और कंक्लूजन क्या होता है हम नीचे की तरफ ख़त्म करते हैं. इसको इस तरीके से समझो. एब्स्ट्रैक्ट वुड बी more about the beginning of work, right? How it is starting, why is the need, why is it significant, and what is it that you are doing. Conclusion में more or less क्या होता है कि क्या कर दिया आपने, what is it that you have done, why you have done it, and what is the significance of it. तो हम लेटर हाफ को ज़्यादा फोकस करते हैं, हम कंक्लूजन में रिजल्ट्स की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं, हम स्पेसिफिक ज़्यादा हो जाते हैं कि कंक्लूजन क्या है हमारा. हम फ्यूचर की तरफ पॉइंट करना शुरू करते हैं, हम अपने काम को स्पेसिफिकली पिन पॉइंट करते हैं. ऑन द अदर हैंड एब्स्ट्रैक्ट को हम थोड़ा जेनरिक रखते हैं बिकॉज पीपल फ्रॉम डिफरेंट एरियाज आर गोइंग टू कम एंड रीड दैट एब्स्ट्रैक्ट. I hope I'm clear, but if I'm not clear, I'll be explaining these one by one in separate videos. So then comes references, and references are very very important. देखो एक बात आती हूँ मैं. If I ask you to write a paragraph comprising of 4 lines and you wrote 4 lines, the reviewer is going to reject it. Why? Because they don't trust you, because they don't know whether it is right, it is wrong. They will reject it, right? But on the contrary, if you cite your arguments, if you are saying that the current state of security in private blockchain is good or maybe bad, whatever your comments are, depends on the person who is commenting. You cite it. तुम good लिख रहे हो, तुम good के आगे ये लिखो कौन कौन से हैं जो कह रहे हैं good है और bad, और फिर तुम bad के आगे ये references दो कि कौन कौन से बोल रहे हैं जो bad है, right? So these references means that considered argument, जो भी आप argument make कर रहे हो in this question, considered argument has already been made and it has been proven and validated in one research work, and we are referencing that research work. So the moment you cite every argument that you make, it will increase the likelihood of your publication. It will also increase the likelihood of providing valid information, because बच्चे लिख देते हैं उसका sense होता नहीं है. So until unless you don't cross verify things from 4-5 different works, you don't write it. Avoid writing it. Also, there are no references. There are no references in abstract and conclusion. On the other hand, references are mandatory in rest of the other sections, because as I told you many times, जो अच्छे journals होते हैं ना, people from you who would be planning to go abroad to do their MS or masters, तो वहाँ पे तुम्हें अच्छे वैलिड जर्नल के पेपर दिखाने पड़ेंगे, बिकॉज दे आर गोइंग टू आस्क यू अबाउट योर ओन वर्क. दे आर सिंपली गोइंग टू से यू स्पेंड 6 months और 1 year ऑन दिस पर्टिकुलर वर्क. मतलब 12 पेज तुमने छापे 6 महीने के अंदर. सो दैट मीन्स योर 6 months ऑफ एफर्ट इज ट्रांसलेटेड थ्रू दोज 12 pages. सो दे आर गोइंग टू ग्रिल यू ऑन द बेसिस ऑफ दैट, राइट? सो रेफरेंसेज बिकम मैंडेटरी in the rest of the sections, because you have to prove the validity of your work. And again I'm saying this over and over again, it is your work. सबसे ज़्यादा मार तुम लोग mindset में ही खाते हो. Your mindset is so poor, it always pulls you down, right? So ideally what happens is, this is the trajectory. For example, we are here on day 0. Day 0 से हमें day 30 तक जाना है, ठीक है? So people start working here. 2 पेपर पढ़ते हैं, 4 पढ़ते हैं, 5 पढ़ते हैं, वो यहाँ तक पहुँचते कहते हैं बहुत काम हो गया. They give up. They don't even realize that the actual journey is only going to start from here, and it goes on like this. जब बच्चा एड़ी चोटी का जोर लगा लेता है ना, वो यहाँ पहुँचता है,
विच इज़ ऑल्सो 20% ऑफ द वर्क. मैं यही बोलूँगी यहाँ 20% काम हुआ. दिस इज़ फॉर सिंसियर वर्कर्स हु आर हार्ड वर्कर्स हु आर जेन्युइनली पुटिंग एफर्ट, जो जेन्युइनली काम करके आते हैं. बिकॉज a saturation comes, which is very correct, and in those saturated points you will have to talk to other people so that they can pull you out of that, you know, saturation. Once this 20% is done, then you enter the big pool of work. ये यहाँ से ऐसे जाता है, right? So if you can see, this is a very broad area. This is a very broad area. और इस broad area के अंदर आपका 80% of the work होता है. Your 80% of the work is being done in this broad area. 80%. राइट, विच विल ओनली कम via रिपीटेड रिविजन्स. उसके बिना नहीं होगा. बार बार इसमें भी ना बार बार रिवाइज करोगे तब होगा. होता ये है बच्चों के साथ, बच्चे मेरे पास यहाँ आते हैं एक्साइटेड, हमें करना है हमें करना है हमें करना है, और वो एक्साइटमेंट क्या होती है 2 दिन में ख़त्म हो जाती है. राइट, तो यहाँ तक कोशिश करते हैं, यहाँ तक उनका मतलब एक्साइटमेंट लेवल इज़ 0. Some students, like I would say out of 10, I find 1 or 2 such kind of students who push through this work also, जो ये वाला काम भी पुश कर लेते हैं, लेकिन फिर उनका ये सिस्टम गिर जाता है बिकॉज दे विल एस्केप. सो कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग. कंसिस्टेंसी इज एवरीथिंग. आई विल टेल यू वाई, बिकॉज इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. अगर तुम स्प्रिंट वाले कैटेगरी से जाओगे ना, स्प्रिंट वाले तरीके से जाओगे कि मैं स्प्रिंट मारता हूँ और मैं काम कर लेता हूँ, कि आज मैं रात को 8 घंटे बैठ जाऊँगा और फिर मैं 4 दिन कुछ नहीं करूँगा, फिर मैं 8 घंटे लगा दूंगा, फिर मैं 4 दिन कुछ नहीं करूँगा, इससे कुछ नहीं होता. व्हाट हैपन्स इज योर ब्रेन, इट कीप्स ऑन डिलीटिंग इन्फॉर्मेशन विच इज़ यूजलेस. वो यूजलेस इन्फो डिलीट करता रहता है इन ऑर्डर टू कंजर्व एनर्जी. सो इफ़ यू गो लाइक दिस 8 घंटे 4 दिन का ब्रेक लोगे तो योर माइंड इज गोइंग टू थिंक दैट दिस इज अ टाइप ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट आई डोंट हैव टू रिमेंबर, and your mind is automatically going to delete that stuff. So same happens with a lot of students. बहुत मेहनत करते हैं और जैसे मैं बोल रही हूँ ना 100 घंटे चाहिए या 150 घंटे चाहिए, वो लोग क्या पता 200 घंटे भी लगा दें, लेकिन उनका तरीका सही नहीं होता. दे डोंट फॉलो अ करेक्ट मेथोडोलॉजी फॉर वर्किंग, राइट. एंड इफ़ यू हैव टू वर्क ऑन रिसर्च, राइट, होता ये है कि यू रीड अ लॉट, right? So cross 100, so you've read 100 papers and then you are making comments, then you are drafting your work. आप अपना काम ड्राफ्ट करके दे रहे हो, आप कह रहे हो ये मेरा बेस्ट पॉसिबल काम है, दिस इज़ हाउ आई कैन एनहांस माई लिटरेचर. ड्यूरिंग दोज मोमेंट्स योर व्यू बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो व्यू है तुम्हारा, इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है. दिस व्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. दिस व्यू बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वट एवर लाइन्स यू आर गोइंग टू से, तुम 10-20 लाइन्स जो भी कहोगे वो 10-20 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. और अगर तुम ये स्प्रिंटिंग एटीट्यूड फॉलो करते हो तो क्या होगा, तुम्हारी जो 10 लाइनें हैं ना, ये हर चीज़ के साथ बदलती जाएंगी. दे विल कीप ऑन चेंजिंग, देयर वुड बी नो स्टेबिलिटी इन दोज लाइन्स. ऑन द कॉन्ट्रारी, इफ़ यू आर कंसिस्टेंट एंड यू गोइंग डे बाय डे, तो तुम्हें ना चीज़ें समझ में आने लगेंगी, चीज़ें जोड़ना आसान हो जाएंगी. वाई? बिकॉज ये जो पढ़ा है ना इंटू 100 मैंने लिख तो दिया, पर इंटू 100 आसान थोड़ा है करना. तो जो एक रात कर रहा है 4 दिन छुट्टी ले रहा है, फिर एक रात कर रहा है फिर 4 दिन छुट्टी ले रहा है, उसका सब कुछ साफ हो जाता है उन 4 दिनों में. सो इट इज़ मोर और लाइक फ्रॉम माई परस्पेक्टिव द अदर स्टूडेंट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0. तो वो करता क्या है, वो 0 से 1 तक जाता है, फिर वो वापस 0 पे आ जाता है, फिर वो 0 से 1 तक जाता है, फिर वो वापस 0 पे आ जाता है, फिर वो जाता है, फिर वो वापस 0 पे आ जाता है, फिर जाता है, फिर वो वापस 0 पे आ जाता है. और अंत में एक्सपेक्ट ये करता है कि मैं 0 से 4 तक पहुंच गया हूँ, मैंने इतना एफर्ट लगा दिया, फिर उसे बुरा लगता है. एंड देन द इनसिक्योरिटीज स्टार्ट टू कम इन. योर माइंड विल ऑल्सो टेल यू कि नहीं होगा, योर माइंड विल टेल यू कि नहीं इनसे नहीं हो पा रहा है. देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर गोइंग टू हैपन, राइट. सो इंस्टेड फॉलो दैट इंक्रीमेंटल अप्रोच. 0 से 1 पे जाओ, 1 से 2, 2 से 3 और 3 से 4. दैट वुड बी अ बेटर अप्रोच. स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, स्पेशली इन रिसर्च. देखो हर चीज़ करने का अपना अपना तरीका होता है, तो इसको करने का 1 महीने का अगर चैलेंज लेके चल रहे हो, एंड आई एम ऑल्सो टेकिंग अ चैलेंज अलॉन्ग साइड यू, सो लेट्स गो इन अ मैनर दैट वी आर एबल टू सी द पीक ऑफ द माउंटेन. सो इट्स लाइक दिस इज़ द पीक ऑफ द माउंटेन. हमारी आइज़ यहाँ रहनी चाहिए, तो उससे क्या होगा, जितनी भी प्रॉब्लम्स आ रही है ना, यहाँ से जो पत्थर आते हैं ऐसे गिरते हुए भी आएंगे पत्थर, तो तुम यहाँ से क्या करोगे, उसको डॉज करते हुए निकल जाओगे. तुम डॉज करोगे तुम निकल जाओगे, तुम डॉज करोगे निकल जाओगे. क्यों? क्योंकि तुम्हें कहाँ पहुँचना है, तुम्हें यहाँ पहुँचना है. ऑन द कॉन्ट्रारी, इफ़ यू गो विद द पर्सपेक्टिव कैसे होगा, मेरा दोस्त कर रहा है तो मैंने सोचा मैं भी कर लूँ, तो ये जितने पत्थर है ना, ये पत्थर तुम्हें स्टम्प आउट कर देंगे. फिर तुम मर के उठोगे कि चल एक पत्थर चला गया, अब नहीं आएंगे, मैं कर लूँगा. दूसरा पत्थर आएगा और दूसरा पत्थर भी तुम्हें गिरा देगा. एंड बाय द टाइम यू रीच हियर,
you would be exhausted, you would be exhausted, you would be demotivated, और परेशान हो गए तुम, और कोई किसी इंसान को पसंद नहीं है परेशान आदमी के साथ रहना. सो पीपल विल ऑल्सो यू नो दिल टॉक टू यू टू अ सर्टेन पॉइंट, देन दे वुड बी लाइक फाइन, एंड यू विल ओनली हैव टू यू नो मैनेज योर सेल्फ. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम पीक शुरू ही नहीं करते. देखो यहाँ से तो पीक शुरू हुई थी मेरी, डिसेंट शुरू हुआ था यहाँ से, मेहनत जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो शुरू हुई थी, और मैं वहीं एग्जॉस्टेड हूँ. तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो पाती कि मैं कभी सोच भी पाऊँगी दैट आई हैव टू यू नो स्केल अप दिस माउंटेन. ऑन द कॉन्ट्रारी, इफ़ यू गो विद दैट परस्पेक्टिव कि क्या है ये, मतलब ये तो छोटे छोटे पत्थर ही तो है, मैं देख लूँगा. सो बिकम सुपर मारियो, मारियो बन जाओ तुम, मारियो, राइट. whatever problems are coming, jump on top of them and navigate, because if you have that clarity in your head कि मुझे यहाँ पहुँचना है, साम दाम दंड भेद ये होना चाहिए, जब तक वो डिटर्मिनेशन नहीं होगी तब तक मैं कह रही हूँ तुम्हारा काम नहीं होगा. बिकॉज देर आर सो मेनी थिंग्स दैट विल कीप ऑन हैपनिंग. असाइनमेंट आ जाएंगे, क्लास आ जाएंगे, योर गर्लफ्रेंड विल कम, योर बॉयफ्रेंड विल कम, योर फैमिली विल कम, तुम्हें पार्टी करने का मन हो जाएगा, कोई सब्जेक्ट का असाइनमेंट, देर सो मेनी थिंग्स दैट विल हैपन. और उन चीज़ों को साइड रखने का तरीका ही एक है, एक टक दृष्टि यहाँ होनी चाहिए कि मुझे यहाँ पहुँचना है, ख़त्म बात. इफ़ यू हैव दैट आई साइट, आई विल मेक श्योर दैट यू नो आई विल बी दैट पर्सन. वो खड़े होते हैं ना बूढ़े से लोग, लैंप लेके खड़े होते हैं कि ये लैंप है और इसमें से लाइट चल रही है और तुम इसको देखो, तुम आगे बढ़ जाओ. दिस इज़ द लैम्प, राइट, एंड दिस इज़ मी. आई नो इट्स अ पैथेटिक ड्राइंग ऑफ मी, बट दिस इज़ मी. So I'll be that person who is standing alongside you and who is showing you the way that this is where you have to work. But ultimately, please ध्यान में रखना, it is you. My goal here is to make you capable कि अगर person X यहाँ है तो कल को वो ये बोलने में comfortable हो that I am a researcher X. That is my goal. And I am not going to serve things on platter because I've done it enough. कोई फ़ायदा इतना होता नहीं है, बच्चा और dependent हो जाता है. तो उस माइंडसेट से भी बाहर निकलना जिस माइंडसेट में तुम्हें ये लगता है मुझसे तो हो ही नहीं पाएगा, उस माइंडसेट में आओ कि क्यों नहीं हो पाएगा. पिक अप अ गोल एंड देन सैटिस्फाई इट. पिक अप समथिंग एंड देन मेक श्योर दैट इट हैपन्स, राइट. दैट इज़ हाउ यू हैव टू गो अबाउट इट. इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट योर एब्स्ट्रैक्ट, हाउ टू राइट एब्स्ट्रैक्ट्स. थैंक यू.